Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos and completing your task also, whatever work is given in that. And today we are going to continue the chapter number 14 because we have been doing this chapter since past few videos, and today also we will do this chapter only, and the name of the chapter is Animals Around Us. Children, you know that this chapter is related to different types of animals, their eating habits, and what is the difference between these animals. Children, in today's video we will be knowing about animals and their homes, then animals and their babies. Okay, but before starting this, we will revise the topics that we discussed in this chapter. Children, in this chapter we discussed about different types of animals, that is pet animal, we have talked about this type of animal and we have revised also. So I'm not going to revise it again because we have already revised it twice. Then we discussed about domestic animals. This also we have done and we have revised also. Okay. Then a wild animal. We have done and revised also. Then milch animal. This also we have discussed and we have revised. Okay. Then mammals. We have discussed this also and revised also. Then amphibians. Children, in my previous video I discussed with you about amphibians. So let me revise this for you. ये मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ. Amphibians किसको बोलते हैं? Amphibians are the animals that can live both in water and on land. ये जो वो animals होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. Amphibians का मतलब ही होता है two lives. First half of their life they live in water. Yeah, most of the time they live in water, and then but they are able to live on land also. When the animals which are first born in water and then they live on land, they also comes under this category, like frog. And when they are born in water, they have gills to breathe, they have fins, but as they grow, when they become adult, they have lungs and they have legs also, so that they can breathe in air and they can walk on land. But these animals are mostly found near wet regions, wet areas, and their skin is mostly moist. थोड़ा गीला रहता है because some of them breathe through their skin also. Children, amphibians में है frog है, crocodile है, then tortoise है, ये सब आते हैं amphibian family से, and we discussed about them. Then we talked about reptiles. Children, reptiles are the animals that crawl along the ground, or they move with their bellies close to the ground. And reptiles have short leg, small leg or no leg. या तो उनके पैर छोटे छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं. रेप्टाइल्स जो हैं वो जैसे कि लिजर्ड है, जैसे कि स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ये सब क्या रेप्टाइल्स है जो क्रॉल करते हैं या जिनका बेली, जिनका पेट का पार्ट बहुत ग्राउंड के क्लोज होता है.
अभी जो स्नेक है वो रेप्टाइल है एंड इट हैज नो लेग्स। क्रोकोडाइल होते हैं उसके थोड़े पैर शॉर्ट होते हैं। जो कमेलियन होते हैं उसके पैर भी कंपेरेटिवली बाकी एनिमल्स के कंपेरेटिवली उनके पैर जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, सो रेप्टाइल्स आर बेसिकली द एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। देन वी टॉक्ड अबाउट rodent, small animals with sharp teeth. The animals which are small in size but they have sharp teeth, like mouse, like rat, like rabbit. They are called rodent. Then we talked about insects. Children, let me write those. Reptiles. Then we talked about rodents. Then insects. Insects are small creatures, very small creatures, and most of them have 6 legs, but few have 8 legs. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, spider has 6 legs. Some insects are winged and some are not. कुछ insects के पंख होते हैं so that they can fly, and some do not have wings. जैसे कॉकरोच है उसका विंग्स होते हैं, हाउस फ्लाई है उसके विंग्स होते हैं, मस्कीटोज के विंग्स होते हैं, बट स्पाइडर का नहीं होता है, एंट का नहीं होता है। तो ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल क्रीचर्स, समटाइम दे आर कॉल्ड क्रीपी क्रॉलीज, क्योंकि वो क्रॉल भी करते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं वो क्रॉल करते हैं। तो इसमें ग्रास हॉपर है, बटरफ्लाइज हैं, ये सारे इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं एंड वी डिस्कस्ड अबाउट देम ऑल्सो इन आवर प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कॉकरोच एंड हनी बीज, ये सब इंसेक्ट्स और इनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट क्विकली। देन वी टॉक्ड अबाउट बर्ड्स। चिल्ड्रन, बर्ड्स आर विंग्ड क्रीचर्स, उनके पंख होते हैं, सबके पंख होते हैं, बट सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। कुछ बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, जैसे कि पैंगुइन, ये लोग उड़ नहीं सकते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। कोई बहुत ऊंचा उड़ सकता है, कोई बहुत कम उड़ता है। जैसे पीकॉक है, वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, इट कैन ओनली फ्लाई अप टू वेरी लिमिटेड हाइट, उड़ के पेड़ पे बैठ सकता है उतना ही। बट ईगल्स दे फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचा उड़ सकती हैं। सो birds basically have wings. Most birds have wings and they fly in the sky except a few. They have different they have beaks of different shapes and size. They have 2 wings with feathers and a tail. Okay, and they lay eggs. Birds lay eggs. Children, we discussed about certain characteristics of the animals. कि हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने एनिमल्स के डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी एनिमल्स को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। All animals have sense organs to feel the things in their surrounding. All the animals have sense organs so that they can feel different things in their surrounding. Then all the animals have different organs for breathing. सांस लेने के लिए उनके अलग अलग organs हैं। Then all animals reproduce. सभी animals के babies होते हैं, बच्चे होते हैं, चाहे वो directly बच्चा दें like mammals और through eggs, अंडे देते हैं और अंडे hatch होते हैं तो उसमें से babies निकलते हैं। But all animals reproduce. ये सब हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। तो आज क्योंकि हमने रिप्रोड्यूस पे स्टॉप किया है, तो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स एंड देयर बेबीज। एनिमल्स और उनके बेबीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये हम कर लेते हैं अभी, डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर बेबीज। ओके,
लेट्स स्टार्ट विद सम कॉमन एनिमल्स. कुछ कॉमन एनिमल्स से हम शुरू करते हैं. एनिमल्स एंड babies. Okay. First one, dog. डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल बेबी ऑफ डॉग? डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल नो दैट डॉग्स बेबी इज कॉल्ड पपी. डॉग्स बेबी इज कॉल्ड पपी. नेक्स्ट इज कैट. कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन, कैट्स बेबी इज कॉल्ड किचन और किट. किट भी बोल सकते हैं और किचन भी बोलते हैं. KITTEN. किचन और किट. ओके. देन गोट. गोट्स बेबी इज कॉल्ड किड. KID. किड. Goat's baby is called kid. Then cow, buffalo, cow and buffalo. Then elephant, camel, cow, buffalo, elephant, camel. इन सब के बेबी को हम बोलते हैं काफ. क्या बोलते हैं? काफ. CALF. काफ. ओके. काऊ के बेबी को भी काफ कहते हैं. बफलो के बेबी को भी काफ बोलते हैं. एलिफेंट के बेबी को भी काफ बोलते हैं. और कैमल के बेबी को भी काफ बोलते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन अ कंबाइंड फॉर्म. काऊ, बफलो, एलिफेंट एंड कैमल्स बेबी आर कॉल्ड काफ. Okay. Now we'll talk about other animals like pig. Pig के बेबी को क्या बोलते हैं? Pig's baby is called piglet. PIGLET. Okay. Pig's baby is called piglet. Pig के बेबी को हम piglet बोलते हैं. Then I hope this is clear. Now I'm going to rub this. मंकी और चिंपैंजी. मंकी एंड चिंपैंजी, उनके बेबी को हम बोलते हैं इन्फेंट. जैसे ह्यूमन बीइंग्स के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट. ओके. मंकी और चिंपैंजी के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट. FANT. इन्फेंट, छोटा बेबी. जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बच्चों को भी इन्फेंट ही कहा जाता है. देन वी हैव लायन, टाइगर या लेपर्ड. लायन के बेबी को, टाइगर के बेबी को या लेपर्ड के बेबी को बोलते हैं कब. दे आर कॉल्ड CUB. कब. लायंस बेबी, टाइगर्स बेबी और लेपर्ड्स बेबी, दे आर कॉल्ड कब. ठीक है, उनको बोलते हैं कब. CUB. कब. देन वी हैव डियर. डियर के बेबी को क्या बोलते हैं? डियर्स बेबी इज कॉल्ड फॉन. FAWN. फॉन. Deer's baby is called fawn. Then horse. Horse के बेबी को भी कॉल्स भी बोलते हैं और फोल भी बोलते हैं. ओके. कैन बी कॉल्ड फोल. FOAL और COLT. ओके. फोल और कॉल्ट. हॉर्स बेबी इज कॉल्ड फोल और कॉल्ट.
I hope this is clear. Monkey and chimpanzee baby is called infant. Lion, tiger, leopard's baby is called cub. Deer's baby is called fawn, and horse baby is called foal or colt. Okay. Next, let's take some more animals. कुछ और एनिमल्स के नाम हम ले लेते हैं. Let's take hen. Hen's baby is called chick. C-H-I-C-K. Hen's baby is called chick. Then fish. एक्वाटिक एनिमल ले लेते हैं. फिश की बेबी को क्या बोलते हैं? फिश बेबी इज कॉल्ड फिंगरलिंग. Fingerling. Fish baby is called fingerling. Then we have kangaroo. Kangaroo. Kangaroo's baby is called joey. Joey. Kangaroo's baby is called joey. Kangaroo's baby is called joey. Then I think बहुत सारे हमने कर लिए हैं. एक फ्रॉग ले लेते हैं. चलिए फॉर यू. FROG. Frog's baby is called tadpole. तो ये हमने कुछ एनिमल्स के बेबीज के नाम आज हमने जाने. hen, chick, fish, fingerlings, kangaroo, joey, frog, tadpole. Okay. Then earlier we discussed dog. Dog's baby is called puppy. Cat's baby is called kitten. Pig's baby is called piglet. Horse baby is called colt or foal. Then cow, buffalo, elephant, camels, their baby is called calf. Lion, tiger, leopard's baby is called cub. Okay, goat's baby is called kid. So you have to learn the names of their babies. Okay, तभी आपको याद रहेगा जब आप इसे लर्न करेंगे. मंकी और चिंपैंजी की बेबी को इन्फेंट बोलते हैं, है ना. We did this, but you have to learn it to remember. आपको अगर याद रखना है तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा. ये बेबीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स एंड देयर होम्स. एनिमल्स और उनके घर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एनिमल्स एंड देयर होम्स. काऊ से शुरू करते हैं. काऊ. काऊ और बफलो को जहां रखते हैं, जो उनका घर होता है काऊ और बफलो का, उसे हम कहते हैं शेड. वी कॉल इट शेड. SHED. शेड. ओके. जहां पे काऊ और बफलो को रखते हैं, जो उनका घर होता है, इट इज कॉल्ड शेड. डॉग. डॉग के घर को क्या बोलते हैं? ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ रहे हो ना. डॉग्स हाउस इज कॉल्ड kennel. 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 Dog's house is called kennel. Horse. Horse कहाँ रहता है? Horse के घर को क्या बोलते हैं? Stable. 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 Horse जो रहता है. Donkey stays in barn. DONKEY. BARN. ओके. देन कुछ इंसेक्ट्स का नेम ले लेते हैं, जैसे कि हनी बी.
ओके, या बी बोल देते हैं, या हनी बी। बी से कहाँ रहती है? हाइव में। दे लिव इन हाइव। देन एंट्स, एंट कहाँ रहती है? कॉलोनीज में। कॉलोनी में, या उनका भी हाइव भी होता है, हाइव भी होता है, एंट का भी हाइव होता है। So you can either say colony or hive. Okay, ant live in colony or hive. Bees live in beehives. Donkey, donkey is also barn. Horse lives in stable. Dog lives in kennel. And cow and buffalo, they live in shed. Then let's talk about some other animals. Lion, tiger. Lion, tiger, they live in caves. Lion, tiger lives in caves. Okay? Lion or tiger कहाँ रहते हैं? They live in caves. Then monkey or chimpanzee. Monkey or chimpanzee, they live on trees. Monkeys and chimpanzees, they live on trees. Okay. Elephant live in forest area. Elephant lives in forest area. Hen, hen कहाँ रहती है? Coop. Hen lives in coop. C-O-O-P, coop. Okay, hen lives in coop. Then bear जो होता है, bear also lives in cave. Bear भी cave में ही रहता है। तो तीनों को हमने साथ में कर दिया कि bear भी केव में ही रहता है। देन रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? बरो में। रैबिट लिव्स इन बरो। रैबिट लिव्स इन बरो। देन बर्ड्स, they live in nest. Birds live in nest. तो हमने हाउस में ऑलमोस्ट काफी सारे एनिमल्स के हाउस हमने डिस्कस कर लिए. Lion, tiger, bear, they live in caves. Monkeys, chimpanzees, they live on tree. Elephant lives in forest area. Then hen lives in coop. Rabbit lives in burrow. Bird lives in nest. Children, these animals, जो cat family के animals हैं, जैसे कि cheetah है या tiger है, they also live in savannah, जो grassland होता है, savannas जिसको बोलते हैं, और grassland में भी रहते हैं. They need not necessarily live in caves. ये den भी बोल सकते हैं. Lion का तो den भी होता है. Lion's house is also called den. Lion के घर को हम den भी बोलते हैं. Okay? So हमने हाउस डिस्कस किया, एनिमल्स का, बेबीज भी हमने डिस्कस किया. These are important because you should know the names of the babies of the animals as well as their house, कि जहाँ वो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं. और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं. नेचुरल सराउंडिंग में आराम से जंगल में रहते हैं. दे नीड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हाउस. कुछ घर नहीं होता है उनका. दे लिव इन ओपन नेचुरल सराउंडिंग में भी एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. देन दिस there is one more information given in your book that animals which are used for carrying loads, जिन animals को
लोड उठाने के काम में लाया जाता है, बोझा उठाने के काम में लाया जाता है, उन एनिमल्स को बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या बोलते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन। Animals which are used for carrying loads, बोझ उठाने के लिए, भारी वजन उठाने के लिए जिन एनिमल्स को यूज किया जाता है, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या बोलते हैं उनको? बीस्ट। बीस्ट मतलब होता है एनिमल। बीस्ट ऑफ बर्डन, BURDEN, they are called beast of burden. Okay. Then camel. Camel is called ship of the desert. Ship of the desert. Camel को बोलते हैं ship of the desert. क्या camel ship होता है? No. Camel is not ship, but it is called ship of the desert. जैसे शिप पानी में बहुत आराम से चल सकती है, फ्लोट करती है, आराम से मूव कर सकती है। हम नहीं चल सकते। हमको अगर पानी पे कोई चलने को बोलेगा तो हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन शिप कितने आराम से मूव करती है। इन द सेम वे जो कैमल होता है, कैमल दे मूव वेरी इजीली ऑन सैंड। जो रेत होती है, बालू होता है, उस पर कैमल बहुत आराम से चल सकता है। अगर हम चलेंगे बालू में तो हमारे फीट जो है वो सैंड के अंदर अंदर घुस जाते हैं, और मतलब जब भी हमारी बॉडी के प्रेशर से वो जो है हमारे पैर जो है, हमारे जो फीट हैं, वो सैंड के अंदर घुस जाते हैं, एंड वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन सैंड। लेकिन जो कैमल होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं। कैसे होते हैं? पैडेड, गद्दे वाले, और बाइफरकेटेड होते हैं, मतलब ऐसे दो पार्ट में कटे होते हैं, ऐसे करके कटे हुए होते हैं, तो 2 पार्ट्स में होते हैं, और वो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो कैमल्स जो है बहुत इजीली सैंड पर चल सकते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है सैंड पर चलने में, और वो दूर दूर तक चल सकते हैं आराम से, एंड दैट टू विदाउट वाटर। वो बिना पानी के ऑलमोस्ट 6 मंथ तक रह सकते हैं। बिना पानी पिए वो 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 मंथ वो बिना पानी पिए रह सकते हैं, मतलब वो इतना पानी पी लेते हैं, एक बार में पानी पीकर वो स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो पानी को अपने हम्प में स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो वाटर बैग होता है उनकी बॉडी में नेचर की तरफ से उसको पानी स्टोर कर लेते हैं, एंड देन दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, इवन मंथ, वो बिना पानी के रहे। क्योंकि डेजर्ट में जो पानी बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पर रिवर्स, पॉन्ड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेक्स बहुत कम होते हैं, तो वहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। तो ऐसे में जो कैमल्स होते हैं वो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, एंड देन दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। तो डेजर्ट में जब चलना होता है तो वो बिना पानी के आराम से दे कैन मूव ऑन सैंड विद देयर पैडेड फीट। इसीलिए उनको कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। और कैमल के बारे में क्या है? कैमल का जो हम्प होता है, कैमल आपने देखा होगा, कैमल की पीठ पर ऐसा हम्प बना होता है, वो जो ऊंचा सा पीठ पर होता है, दैट इज कॉल्ड हम्प। और जब कैमल को खाने के लिए कम मिलता है, जब उसको खाना नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो वो क्या करता है, इस हम्प में जो फैट स्टोर्ड होता है वो उसको यूज कर लेता है। इट यूजेस द फैट स्टोर्ड इन हम्प। मतलब बहुत दिन अगर बिना खाने का रहना पड़े और कैमल को खाना न मिले या कम मिले, तो वो क्या करता है, अपने हम्प का जो फैट है, उस हम्प में स्टोर फैट होता है, ये जो हम्प होता है इसमें फैट स्टोर करके रखा जाता है, मतलब स्टोर होता है, कैमल के हम्प में फैट स्टोर होता है, तो वही स्टोर्ड फैट को वो यूज करता है। जब उसको खाना कम मिलता है या खाना नहीं मिलता है, तो वो हम्प में जो फैट स्टोर होता है उसी फैट को वो
यूज कर लेता है, ठीक है। एंड फॉर वाटर इट हैज वाटर बैग इन इट्स स्टमक, तो वो बिना पानी के और बिना खाना का काफी दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, देन चिल्ड्रन, इज इट गुड टू किल एनिमल्स फॉर आवर यूज? हम अपने यूज के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए क्या एनिमल्स को मारना अच्छी बात है? एनिमल्स को हंट करना अच्छी बात है? नो, वी ऑल विल से नो, है ना। इस बात पे सारे एग्री करेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ पिलोज मिलते हैं जिसके अंदर फेदर्स भरे होते हैं, फेदर वाले पिलो होते हैं, है ना। चिड़ियों बर्ड्स के पंख को भरा जाता है उसमें, तो वी शुड नॉट डू दैट। देन लेदर बैग्स, लेदर की चीजें बहुत मिलती है जिसके लिए एनिमल्स को किल किया जाता है। समटाइम्स एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट के दांत होते हैं बाहर की तरफ जो निकले होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टस्क। उसको क्या बोलते हैं? टस्क। एलिफेंट के वो चबाने और खाने वाले दांत नहीं होते, वो से बाहर की तरफ जो टस्क निकला होता है, that is very costly, and animals, elephants are most of the time they are hunted for this tusk. इस tusk के लिए लोग उनका शिकार कर देते हैं। इस tusk को लेने के लिए लोग elephant को मार डालते हैं, which is very 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 bad. नहीं करना चाहिए ना ऐसे एनिमल्स को। तो cruelty towards animals is not good. जैसे हमारे में जान है, जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे एनिमल्स को भी पूरी तरह से जीने का अधिकार है। हमें अपनी सेल्फिशनेस के लिए एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। पहले लोग टाइगर का शिकार करते थे और अब देखिए टाइगर का क्या हाल हो गया, इतने कम हो गए हैं टाइगर। पूरे वर्ल्ड में टाइगर की जो स्ट्रेंथ है बहुत कम हो गई है। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर भी करके एक प्रोग्राम भी निकाला है जिसमें कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, टू सेव द टाइगर्स। उसके लिए आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि टाइगर को बचाना पड़ रहा है, सेव टाइगर्स, है ना। तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया, सो दैट टाइगर शुड नॉट बी किल्ड। क्योंकि ऐसे ही अगर हम एनिमल्स को मारते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो एनिमल पूरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे एक डोडो बर्ड होता था, वो अभी उसकी स्पीशीज खत्म हो गई है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। लोगों ने इतना शिकार किया कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं या एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कोई एनिमल हमेशा के लिए खत्म हो गया, मतलब हमें उसे कभी नहीं देख पाएंगे। और एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो खत्म होने वाला, जिसके बहुत कम रह गए हैं एनिमल, जो क्वांटिटी में बहुत कम रह गए हैं, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? कुछ तो एनवायरमेंट की वजह से, कुछ हम ह्यूमन बींग्स की वजह से, जो हम अपनी सेल्फिशनेस में एनिमल्स को मारते हैं। देन वी शुड नॉट डू दिस। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, whether wild animals or any kind of animals, and because they are helpful in maintaining the environmental balance. ये आप इसके बारे में आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। बस we should remember that we should not harm any animals, we should not hurt any animals, we should not kill animals. Okay, so this chapter is over. We have discussed almost everything related to the animals जो आपके standard का है। And in my next video we will do the exercise of the chapter. इस chapter का हम exercise करेंगे। Okay, so मिलते हैं अपने next video में। Thank you.